If you give any one subject example, like how you did for a particular subject, if you can explain. So I decided to just enjoy in the internship, and I decided to take a drop, and then I will study for 1 year. I just thought that I will study for 1 year straight and will then give the exam properly. मैंने सेरिबेलम के लाइव क्लासेस में एनरोल किया था, बट वो कंप्लीट हो नहीं पाते और बैकलॉग्स ही बढ़ते जा रहे हैं. तो नेक्स्ट डे मैं सुबह उठते ही मेरा पहला काम होता था वो वीडियोस जो देखी है उनके नोट्स उठा के पहले मैं रिवाइज करता था बैठ के. उसी में ही मेरे 2-3 बज जाते थे दोपहर के. रिवीजन कैसे प्लान किया? बट जितनी नोटबुक्स बनाओगे ना उतना ही वो नुकसान है, क्योंकि उसको कभी उठा नहीं पाओगे बाद में. तो मतलब ज्यादा नोटबुक्स मत बनाने पे जाओ, चीजों को एक ही जगह रखो. और सर एक डेली का थोड़ा आप शेड्यूल स्ट्रेच बता दीजिए, मॉर्निंग से किस टाइम के कैसे क्या करना चाहिए, आउट स्ट्रेच थोड़ा. So basically I started with rapid revision first, and I had just completed one subject before postponement of the NEET PG 2024. Hello, hi Mohit. Hi Dr. Deepak sir, कैसे हो? बढ़िया. How are you, bro? So how's the life after good result? Nothing much changed. Just I'm not studying now. Those who don't know, Mohit also have a YouTube channel called Essential Medical Sciences. Yeah. Essential Medical Science. With over more than 5 lakh subscribers. Yeah. So just wait for 1 minute so other people can join. Yeah. So we can start. So thank you so much, Mohit, for joining. And like Mohit is amazing journey from last year 1,16,383 rank to now Air 3307. Such an amazing journey. Thank you so much for joining, Mohit. Thank you sir for giving me this opportunity. So like Mohit, when did you started your preparation, like in college days, like internship, specific for NEET PG? So basically I joined DAMS in my second year of MBBS. I have done classes there, but I was not able to revise them properly. So after 1 year COVID came and everyone was at home. Then I bought Marrow plan and started doing my third year of MBBS from Marrow. But I used to just do the practical things, and of third year I would say I have done Optha and ENT properly from Marrow. Then in final year I have just done the practical part from the Marrow, just the cases that came in the exams. I have just done that part from the Marrow main videos. And then in internship I haven't studied for 1 year. I have two options. One, to study in between my duties, because the internship in West Bengal is very hectic. So I didn't get much time to study. So I decided to just enjoy in the internship, and I decided to take a drop, and then I would study for 1 year. I just thought that I will study for 1 year straight and will then give the exam properly. So last year when I got the rank of around 1,16,000, honestly I was happy with that rank, because I thought I would not get below 1,50,000. But I got 1,16,000. I was happy with that rank because I haven't studied for 1 year straight for NEET PG. After that, my internship got ended on 1 May 2024. Then I started preparing for NEET PG from around mid of the June. And before postponement of the NEET PG 2024, I have just completed one subject from rapid revision. So basically, I started with rapid revision first, and I have just completed one subject before postponement of the NEET PG 2024. And after postponement, I tried to do more subjects. I just thought to do the long subjects first. So I have done OBGY, surgery, and some of the PSM before the postponed exam of NEET PG 2024. And with these three subjects, I got a rank of 1,16,000 last year. And then I decided to just keep the flow, and I just started doing rapid revision first from Marrow itself. And then I completed around 12 subjects or 13 subjects by 20th of November 2024. Then I saw the BTR plan of Zainab ma'am, and the cycle that Zainab ma'am gave, the proper schedule that ma'am gave to do these subjects in this much of time, and then the test part. So I left all the remaining subjects, like I have done 12 subjects. Then I left the remaining 7 subjects and started doing the schedule of the Zainab ma'am. So in that schedule, I have done the integrated part first, and in this way I have completed all my subjects from BTR in the second cycle. Basically, first cycle was rapid revision, second cycle was BTR.
So in first So- cycle, you not touch BTR. No, in first cycle I have not touched BTR. I have started BTR on 20th November 2024 after my INI exam. In that INI I got a rank of 20,000 with that 12 subjects, around 12 subjects that I have done from rapid revision. Then after completing my second cycle, I started the third cycle from the BTR schedule itself, but I not stick to BTR only. I had done RR in each cycle, and then I started adding my rapid revision part that I think that this can come in the exam, and this is important and not in the BTR. I started adding those points into my BTR itself, and so that at the end, in the last 15 days of the NEET, I had just to do that 2 books of BTR only, with so much of information that I have added from rapid revision, custom modules, GTs, etc. So it was a bulk of information for me to revise in the last 15 days. So Mohit, like people now have confusion about that thing only, like how to incorporate your rapid revision note with BTR. So for if you give any one subject example, like how you did for a particular subject, if you can explain. So basically, first I will tell the subjects that I have not done from rapid revision. I have not done medicine from rapid revision. I have just done from BTR. I have not done derma, psyche, radio, anesthesia. I have not done these 5 subjects from rapid revision. I have just done BTR for them, and then I added from the questions, GTs, etc. to add more information to those topics. So for medicine, like I would give the example of medicine. I have not done RR for that, but I have added the information into my BTR from like the test and discussions of the Zainab ma'am. I have added the test and discussion part, different information into my notes. Then the custom modules. I used to do daily 50 questions custom modules of all subjects. So basically that gave me upper hand in the exam. I would suggest to do 50 questions daily custom modules using all tags and all subjects that you have done so far. So this will help you in revising the previous subjects that you have done, example a month back. So you will be able to revise those topics like 50 questions, 19 subjects. You will get 2 to 3 questions per subject. So you would be able to revise those previous subjects topics, like 2-3 topics daily. You would be able to revise in 20 days. 40 to 50 topics you would be able to revise. So main key is the revision. Keep adding things into whatever source you are using, like you are using main source as rapid revision, and then you can add up things into your rapid revision itself from questions, from GTs. So add the information into your own notes and try to make them concise. Like in rapid revision, like if you're using your rapid revision as the main source, then just cut the part that you think this is not important for me, and I had studied it many times and I would be able to remember it in the exam. It is not required to revise it in the last 15 days. Just cut that part. I would not say just कि बिल्कुल इसको काट दो, but just cut it with a pencil or whatever you are using and concise your note properly, because concise करना बहुत important है. At the end, you would not be able to revise the whole rapid revision notes in last 15 days. Last 15 days are very important for your exam. So try to concise your notes as much as possible so that the limited information that you are studying, that information should be limited also, and it should be high yielding also for the exam. And after you joined the BTR bootcamp also offline, right? No sir, I have not joined the BTR bootcamp. I have attended the BTR 4-day course in Vidyajivan Greater Noida. After that, after seeing the environment there, I thought to just shift there, because the environment there was so comfortable for studying. Like 1,000 students are studying for one exam. So you would, if even on one day, if you are not getting, अगर मतलब कि आपको अगर नहीं लग रहा कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, so you would be able to see those different students studying. Then naturally you will be able to study, even if a little, but you will be able to study. You joined library there? Yeah, I joined library, like it was 3,000 per month for self-study. Basically, it was a self-study course. I used to go there. There are 2 auditoriums there for self-studying, and sometimes I used to study on the roof itself, and just I used to use that environment for studying. Environment was good. After postponement, I joined the TND course of Zainab ma'am there, offline TND course after postponement. Okay. And how was the experience with TND?
TND, I would say those who think that BTR information in BTR is very less. So it is not so. If you see the BTR plan properly, there is very much to do in the BTR only. You would not be able to do it in 7 or 8 months itself. Many compiled modules are there. ENDs, around 6 ENDs cycles are there, present there. So ENDs are basically not from the BTR. If you think that ENDs, test and discussions come from BTR, that it is not so. Ma'am used to add up things through the test and discussions. Like what she has not taught in the BTR, she will give it in the form of a question and then teach it in the discussion after the test. So basically test and discussions helped me a lot. I have added so much information in my BTR book that I would not be able to complete a subject like dermatology. I would not be able to complete in a single day. I have added that much information in my BTR book. Okay. So what do you think? Like now 90% people are using BTR. So someone with BTR getting rank and someone with BTR not getting rank, what is the difference between these two people? Like you have seen other people's mistake. Main funda is that I have told earlier also that only BTR is not enough. You would have to do the compiled modules also. Like ma'am has taught in this last years, after NEET PG 2024, ma'am has added so many videos like compiled Park, compiled Robbins, compiled different Bailey Love compiled, like different gold standard books. Ma'am have added the important information from those books and made videos for them. So if you will explore the BTR plan, you would be able to see many things that you can do, and you would not be able to complete it in till your NEET exam. I am not able to complete, like I have not completed many compiled 2 to 3 compiled subjects. I have not completed till my exam also. So there are many things to do in that. I have only completed the test and discussion only 3 cycles. There are 6 cycles of test and discussions. The people who used to top when I went to boot camp, the people that used to top in the top 10 rank, the people that got, so they have done all the cycles, all the test and discussion cycles, online also, then offline also, that they have they will see the question and they will mark the answer. So they have topped also. The 44 rank is from our BTR Vidya Jeevan course, and many ranks are there from around 100 students got under 10,000 rank. Okay. So like how many AND cycles you have done from the online BTR? I have done basically 5.0 live. I have done it live 5.0, 6.0, and for some subjects I have done 2.0 also. And the offline TN test and discussions after postponement I have done there also. Like 3 cycles I have done. Okay. And how was your GT journey? Like from how many questions you started, how you improved in between? The first GT that I gave it in around October or November. I got 62 corrects only, and then after that I have not increased much in the next GTs. Like after 62 I got 80, 85 like this. Then I started doing daily 50 questions custom modules that I have told earlier also. 50 question custom modules. I used to do all the texts. I used to do it from Marrow, but you can do it from any app that you are using. 50 questions, make a custom module of 50 questions, use all tags and all subjects that you have done so far. Like if you are doing in your first cycle itself and you have done 10 subjects, add all those 10 subjects in that custom module and give around it will take 2 to 2.5 hours to review it and to do the test basically. And if you are getting like 50 from 50 you are getting only 20 or 22 correct, 25 correct or 15 or 10 correct, don't think much about it. Just see all the 50 questions properly. जो भी topic उसमें है, study it from your own notes or from the things that are given in below the question itself, and from your notes also. So this will help in revising the previous subjects that you have done 1 month or 2 months before. So like what happens, like what the topic that I have done, the subject I have done 1 month or 2 months before, I would not be able to remember anything. But if I will do questions daily, then it will take 2 to 3 topics daily you are doing for each subject. Then these 2 to 3 topics you are revising again and again, and
the main funda is of revision. If you are not revising, that you would not, then you will not be able to remember the topics, and you will always do it wrong in the question. Even if it's asked, it will be asked 100 times, then you will do it wrong if you will not revise the topic properly. So basically, I started these custom modules, 50 questions daily, and I improved my GT score. Like from 95, I suddenly in 15 to 20 days I jumped to 117 directly. 117, then in next GT 124, next GT 133, and then I reached 140. After 140, I stick to 140 for 2 to 3 tests, and then I just gave a mock GT before my NEET PG exam, like 10 to 15 days before, and I got around 153 corrects with the 5,000 rank out of 1,60,000 people, and that got reflected in my main exam also. So GTs help you in like you will be able to see where you are standing in the bulk of the भीड़, जो भी जिस भी भीड़ में आप अभी लड़ रहे हो उसमें कहाँ खड़े. So how that's my last question, then we'll open the floor for other people to ask. When someone get rank around more than 1 lakh, so majority what they do is there will be always self confidence issue. Okay, I got more than 1 lakh rank, how will I be able to even dream of getting less than 5k rank? So how you motivated, or like obviously there should be there were days where self doubt हुआ होगा. Yes sir. So basically when I got a rank of 1,16,000, or anyone who is getting more than 1 lakh or more than 1,20,000 rank, it's just a number, and then I knew that I have not studied much. I knew my reality that I have not studied. That's why I got this rank. So anyone who is getting this rank after first attempt, then don't think much. इस rank से कुछ नहीं होने वाला. The moment you will start preparing, and you will prepare for around 7 to 8 months. Proper preparation is required. So if when you prepare for around 7 to 8 months, then you will this will get reflected in your rank if you study properly and honestly to yourself. Okay. So guys, you can unmute yourself and you can ask your queries now. Anything related to BTR, source, or whatever you want to ask. So someone commented, please correct me if I'm wrong. I am in face-to-face class of Bhatia. So I'm planning Feb. We have offline classes. I'm trying to finish one reading proper with 50 MCQs, completed subjects, and GT Mero. After Feb, at least 2 revision, then BTR, keeping tentative date June BTR. So I was like, I will read 2 times with adding notes from my main book. Is good plan. Itna bada question, please unmute and ask. I also got confused, like what are you asking? Aslam? I mean, Yeah, ask. Hi, sir. Hi, ask. Sir, so exactly we have just finished 4 subjects till now offline B2B in Bangalore, sir. So we have 4 more months of classes, sir. So I was planning every day I'll do, as sir told, 50 MCQs custom modules of till now which all subjects are completed of that. And जब 4 months के बाद हो जाएगा ना सर, उसके बाद जो मैंने अभी पढ़ा तो वो रिवाइज करूंगा 2 बार, फिर मैं BTR स्टार्ट करूंगा. जब BTR पढ़ते पढ़ते उसी में ही जो मैंने प्रीवियसली जो इम्पोर्टेंट है वो ऐड कर एट लास्ट आई मेक अ मेन नोट्स एज BTR सर. So I was thinking like that sir. What you just told same, but I think कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है. Okay, so मेरा मतलब saying कि अभी 4 महीने फेस टू फेस क्लासेस लेंगे, उसके बाद BTR स्टार्ट करेंगे. So what do you say? in between face-to-face classes, how much time you are getting to revise that subject? Sir, 1 week में 4 classes रहता है सर, 4 दिन, बाकी 3 दिन हॉलीडे रहता है सर. Only 3 days you are getting to revise. हाँ सर. Then next subject. हाँ सर. Every week you are having classes. हाँ सर, हाँ सर. देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आप लोग अभी जैसे कि आपने बोला कि क्लासेस चल रही है, तो ये जब एक बार सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद यू शुड ट्राई टू स्टडी फ्रॉम BTR अकॉर्डिंग टू मी. बिकॉज BTR जो आपको लगता है कि BTR का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ कंसाइज कर दिया चीजों को, तो ऐसा नहीं है. बेसिकली BTR में ना आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि चीजें कितनी इजी हो रही हैं. जो चीजें रैपिड रिवीजन या मेन नोट्स में इधर उधर फैली हुई है, रायता सा फैला हुआ है,
वो बिल्कुल मैम ने एक जगह कंसाइज करके इस तरह से पढ़ाया कि वो चीजें आपको याद रहे। मतलब कि पेपर में क्या हो रहा था कि अगर मेरे को कोई भी चीज याद नहीं आ रही है, किसी भी मान लो कोई क्वेश्चन आए, मेरे को चीज याद नहीं आ रही है, बट मेरे दिमाग में आंख बंद करते ही ना पिक्टोरल मेमोरी में वो पेज आ जा रहा था पीटीआर में। तो वो चीज होना बहुत जरूरी है। रैपिड रिवीजन में मेरे साथ वो कभी नहीं हुआ कि मैं पढ़ रहा हूँ और आंख बंद करने पे मेरे सामने कोई पेज आ जा रहा है कि हाँ ये चीज वहां लिखी हुई है। ये चीज बीटीआर में आपको मिलेगी, पता नहीं कैसे, बट ये होगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर होगा ये वाली चीज। तो आई वुड से कि अभी एक फर्स्ट रीड कंप्लीट होने के बाद एक बार यू शुड स्टार्ट डूइंग बीटीआर एंड डू द अदर स्टफ आल्सो दैट यू आर डूइंग daily. You should watch around, if you will 2 hours daily you can watch BTR. Just try to do it for 1 to 2 subjects. 1-2 सब्जेक्ट करके ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लाइक और नहीं तो जैसे मेडिसिन का इंटीग्रेटेड ही करके देख लेना, उसमें ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब हाँ जो चीज है वो सही है, कि आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा वो चीज। आरआर से ना क्या होता है, आरआर पढ़ने में बार बार भी पढ़ोगे ना, आरआर 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल होश हो जाता है। मतलब बीटीआर से रिकॉल करना इजी है ना। हाँ, बीटीआर से क्या आपको रिकॉल इजीली हो जाएगा। आरआर उतना जल्दी मतलब कि दिमाग में आता नहीं है, पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है। मेन चीज वो है। तो मैंने बीटीआर इसलिए अपनी सेकंड साइकिल में ही ऐड कर दिया था कि बीटीआर भी करा मैंने। ये नहीं कि मैंने सिर्फ बीटीआर किया, सेकंड जो मैं साइकिल बोल रहा था, जब मैं मैम के शेड्यूल में ऐड हुआ था, तो लाइक 1 वीक मैम ने दिया किसी एक सब्जेक्ट के लिए, तो उस 1 वीक में मैं पहले बीटीआर की वीडियो देखता था, उसके बाद बीटीआर रिवाइज करता था और फिर आरआर रिवाइज करता था। उसके बाद आरआर में से जो चीजें बीटीआर में ऐड करनी होती थी तो वो ऐड कर लेता था। तो ये चीज मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा कि ज्यादा लेट बीटीआर को करोगे तो उसके बाद करने का मतलब नहीं है उसके बाद मतलब बीटीआर, क्योंकि एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग जो है वो जून में होगा। लाइक दिस ईयर भी जून में होने वाला था, बट वो किसी रीजन से नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर ऐसी चीजें नहीं होने वाली ना, तो जून में ही एग्जाम होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी प्लान करके आपको चलना चाहिए कि अच्छा, वो क्वेश्चन हिंदी में था इसलिए मैं हिंदी में जवाब दे रहा था उसको। सो बेसिकली यू शुड ट्राई टू मेक योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू जून, according to me, and according to that you should be making schedule like first read in these months, second read in these many days. So you should do like that only. सर लास्ट डाउट सर, मैंने जीटी ना सर रिसेंटली मैंने मैरो पे जीटी, आई फील कि इट्स वेरी टफ सर। करंटली मैंने दिया, मेरा 300 क्रॉस नहीं हो रहा है सर। फिर कस्टम मॉड्यूल्स में आई यूज टैग ओनली इमेज बेस्ड पीवाईक्यू, सॉरी नीट, एम्स एंड क्लिनिकल सर, 4 टैग यूज कर रहा हूँ सर। उसमें इफ आई डू 50 कस्टम मॉड्यूल्स आई एम गेटिंग अप्रॉक्स 22 सर, 22-20 सर। क्रॉस नहीं हो रहा है सर, तो इज इट फाइन सर? पर रिव्यू कर रहा हूँ सर। 20 or 22 is fine. You just custom module you are doing is mainly for revising the topics. It's not for कि भाई आपको कुछ इसमें वो नहीं है कि आप अपने आप को इससे ये नहीं करना कि हाँ मैं इससे अच्छा नहीं कर पाया हूँ, मैं तो कुछ किसी चीज के लायक नहीं हूँ, वो सब नहीं सोचना। It is just for revising the subjects that you have done previously. Okay, and according to me, you try BTR in your second cycle, and if you have not done PYQs one time, then you should not do custom module directly. Try to do the PYQs first in your first read, complete the PYQs in your first read. From second read, you should start the custom modules, because if you will do PYQs and custom modules both simultaneously, then you will not get time to watch the videos and revise them. Sir, how many cycles of active recall should we do, sir, of BTR? I have done 5 times. I have done the only BTR. After starting BTR, I have revised it around 3 times before postponement, and after postponement 2 more times. So 4 to 5 revisions are enough for doing it. Sir, how would you study effectively with these recorded lectures? Like live class mein we can focus continuously on it, but with recorded lecture I'm feeling like my focus is going off within 30 minutes, and after annotating like extra points whichever has been told, to recall that like I'm taking almost 3 times the, agar video ka lecture is 1 hour, I'm ending up taking 3 hours, and it's still not in a revisable format, or it's not retaining in my memory. So at a stretch, should we read these recorded lectures, or is there any other strategy which is more effective and faster? So it's your first read or second read? Sir, second read. So you are watching lectures in second read also? First read, I'm like, I had written everything in notes and tried to remember, but I'm not able to recall anything which is being told by the teacher.
see, if you have done the videos for one time, that you should not watch them again and again. Just watch the part that you are not able to revise. Just see that part only second time, because if you will keep seeing the videos every time, that you will not be able to complete the revision in less time basically. So just you have watched the videos, just try to revise the notes. It will take around 2 to 3 days to revise the notes in the second read basically. After revising, if you are not getting confidence from the rapid revision, then have you bought the BTR plan? Yes, sir. I got the BTR plan. Then you should do it from BTR, because after doing BTR, you will be able to remember and revise the things from the RR also. It will help you a lot. Just try to do it just try to add it in your schedule and start doing BTR of the subject that you are doing now. I am just saying the BTR main videos only. Just do that part, not the compiled. That you can do later also. Just watch the main video. It will be around for main subjects like surgery, it's of 6 hours, Obs-Gynae 5.5 hours. Like for short subjects like ENT etc., it is 2.5 to 3 hours only. So you can watch it in one day only. I tried BTR with Dermat. Same thing happened. Like I studied, I revised, but when I opened my notes again, which I had written, I was not able to remember anything. So I have to go back to the video. कहीं पे कुछ तो error हो रहा है मेरे strategy में लग रहा है. So you have done rapid revision of every subject? I have done majority of subjects. Short subjects नहीं किए, but major surgery, OBG, and medicine. OBG are the subjects that you will not be able to revise at the last day also. Like I have done surgery many times, but I don't remember the rapid revision even on the last day. But you will have to keep some subjects aside, because you will not you cannot try to do it. Try to use unannotated PDF of BTR notes. There is you can get unannotated PDFs, and then try it. For example, one page, revise that one page BTR, then see the unannotated BTR PDF of that page, then write. I used to do this also in my third read. Basically, I just revised the BTR, and next day the unannotated PDF, and I used to write with my Apple Pencil and used to annotate it. Then see what I have not remembered, then I used to see that part from the notes itself. Try to add it to your strategy. It will help you a lot. क्योंकि कुछ चीजें लिखने से याद होती हैं, वैसे याद नहीं होती. Okay. Thank you, sir. So as I'm using the custom module tag only of AIMS for INI, so should I add the tag of NEET and all other tags, or I should continue only with AIMS tag? So you are giving your first INI-CT, or you have given the last time? No, I have given last time, but I did not qualify. I got correct responses of 90. So then if you are doing only AIMS tag, then you can keep doing it till the INI-CT exam, and after that in your next read after INI-CT you can add the NEET tag and the rest. NEET tag is different. Use NEET tag for the subjects that you are doing, and custom module is a different thing. You have to add it to your schedule for 2 hours every day. You should start it after INI. Custom module you can start after INI, and try to add it in your schedule other than the PYQs, because PYQs you have to do many times before the exam. Those will not be repeated the same, but you have to do them. And sir, I have only taken the annotated notes of BTR, and I have not taken the plan. So I'm not seeing any video, but I have done BTR once for NEET PG. So what do you think? What should I do? You have watched videos earlier. Earlier you have watched videos. No, you have watched the videos of BTR earlier. No sir, I did only BTR. Full BTR I have done without videos. Matlab, I got the concept. I have done the videos, so I would say you should watch the videos also, because ma'am's voice will help you in revising many things. Even and for BTR, videos are necessary, because there are many things written very short way. So when you just revise the notes, you are not get the real point. When you will watch the video, then you can see that you have to add many things that have not been written in the notes also.
Okay, sir. I think you Okay, should thank you, watch sir. the video. Sir, Sir, regarding like previous year questions solving, I'm currently in first stage, sir. So what I do is I choose AIMS tag and NEET tag for previous year questions. So during second read, should I solve like Marrow as year-wise previous year questions also? So should I do that wise? Like I used, should I use hashtags only for till my needs? According to me, you should keep doing the NEET and AIMS tag only because you will get many previous year questions from these tags. And when you will do the previous year questions, different folder that is given in the Marrow, you will get only 7 to 8 years questions only. So you should do the tag. You should use the custom modules and use the tag and do the topic. Like you should do the topic wise questions. If you are adding the custom module, you are adding 100 questions and you are getting 100 questions only from the PYQs, then you should decrease the topics from the custom module so that you can get all questions from one topic. Like if you are adding 100 questions and you are getting 50 questions only, then you तब मतलब आप समझ जाओगे कि हाँ इतने questions ही हैं उस topic पे. Do that way only. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Sir, one question. Good evening, sir. I Hello? wanted Hello. like Sir. Yeah. Hello? Shraddha. Hello. सर जैसे आपने मतलब 1,13,000 से इम्प्रूव करके 3,000 तक की रैंक लेके आई, तो कई बार ऐसे होता है ना कि इंटर्नशिप के साथ में मतलब मैंने नहीं करी है पढ़ाई, तो मेरी भी ऑलमोस्ट ऐसी कुछ रैंक आई थी, तो बट मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो सेल्फ डाउट और वो चीज़ें आती, क्योंकि हमारे साथ वाले बहुत बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप में भी कर रहे होते हैं, तो उनका उनकी रिलेटिवली हमसे बहुत बेटर स्टेट में है वो, तो मतलब अपनी सिचुएशन को देख के फिर बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील होता है, और ना मतलब इस वजह से ऐसे होता है कि मेरे से चीज़ें, मैं फर्स्ट बार स्टार्ट कर रही हूँ पर चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो ऐसे लगता है कि मेरे से तो होगा ही नहीं चीज़ें, मैं कैसे करूँ? तो अभी फर्स्ट रीड चल रहा है? हाँ फर्स्ट रीड चल रहा है, बट सर मैं BTR से स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट रीड, मतलब मैंने RR नहीं करे हैं अभी। अच्छा, अगर BTR से अभी कर रहे हो तो INI के बाद एक बार RR से भी कर लेना। मतलब मैंने 5 सब्जेक्ट्स जो मैंने बोला है, लाइक मेडिसिन, डर्मा, साइकी, एनेस्थीसिया, रेडियो, ये 5 सब्जेक्ट्स यू नॉट नीड टू डू फ्रॉम RR, जस्ट डू BTR फॉर दीज सब्जेक्ट्स। रेस्ट सब्जेक्ट्स यू शुड डू रैपिड रिवीजन, बिकॉज एक मतलब आपको ब्रॉड एस्पेक्ट पता चलेगा उस सब्जेक्ट के लिए। एंड कुछ चीजें एक बार अगर मान लो पढ़ भी रखी होती है ना, वो अगर एग्जाम में आ जाती है तो कहीं ना कहीं से वो बैक ऑफ द माइंड रहती है, और वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड से आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। तो RR मेरे अकॉर्डिंग एक बार कर जरूर लेना। और ऐसा फील होता है कि मेरा तो हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो आ रहा, ये चीज होगी। अभी फर्स्ट रीड चल रहा है, सेकंड रीड के एंड तक ये चीज होने वाली है। जब थर्ड रीड करोगे ना, तब यू विल बी एबल टू रिटेन अराउंड 40 to 50% ऑफ द टॉपिक। तो अभी ज्यादा मत सोचो। किसी का माइक ऑन है शायद, तो अभी ज्यादा मत सोचो, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। धीरे धीरे करके सारी चीज हो जाएंगी, बट थोड़ा सा कंसिस्टेंसी करते रहो। अगर अभी ये सोच के अगर टाइम वेस्ट 2 दिन 3 दिन खराब कर लिए, तो फिर वो चीज बाद में रिग्रेट करोगे आप लोग। इसलिए थोड़ा ज्यादा नहीं सोचना कि मेरे को नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। अभी जैन फेब में जाके मेरा GT स्कोर 100 क्रॉस हुआ था, तो ज्यादा मत सोचो, अभी तो सितंबर ही चल रहा है। गुड इवनिंग सर, आपने फर्स्ट रीड कैसा किया था, और मतलब RR और PYQ, और कब तक चला था आपका, और आपने BTR कब स्टार्ट किया था पढ़ना, और PYQ आप कैसे करते थे? जैसे मैं अभी जो फोल्डर खोलती हूँ ना PYQ का अलग से, तो वो सब एक साथ नहीं हो पाते, इतने क्वेश्चन एक साथ रिव्यू, तो आपने वो कैसे अप्रोच किया था? देखो, मैंने रैपिड रिवीजन से फर्स्ट रीड जब मैंने स्टार्ट की थी, वो मेरी खत्म हुई थी, और मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था। मतलब मैं उतना जल्दी से पढ़ाई शुरू नहीं कर पाया था कॉलेज के बाद, क्योंकि 1 साल पूरा मैंने एंजॉय किया था इंटर्नशिप में। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा ट्रैक पे आ रहा था। तो मैंने लाइक 20 नवंबर मैंने इससे BTR कह रहा हूँ, रैपिड रिवीजन से मैंने फर्स्ट रीड की थी। लाइक
हाँ हाँ एक लाइक 20 नवंबर तक मैंने फर्स्ट रीड की थी, उसमें मेरे 12 सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट हुए थे। लाइक ENT था, ये भी बच गया था, और हाँ, हाँ। शॉर्ट सब्जेक्ट्स तो मैंने किए ही नहीं फिर बाद में RR से, और मेडिसिन भी नहीं किया। सो उसके बाद में डायरेक्ट BTR की मैम का स्केड्यूल आया था INI के बाद, कि उसमें मैं सीधा ऐड हो गया था। जो मैम का स्केड्यूल रहता था कि इतने टाइम में इतने सब्जेक्ट्स करने हैं, तो मैं वो करता था। उसके बाद मैम का लाइव टेस्ट देके लाइव डिस्कशन करता था मैं। तो वो चीज धीरे धीरे करके, मतलब कि मेरे को कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार सोचता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली बस मैं, वही है ना कि मैम का हाथ पकड़ के बस चलता रहा आगे, कि भाई चलते रहना है मैम के साथ, जैसे मैम बोल रही है वैसे करता गया मैं। और मैम खुद बोलती है, मैम ये नहीं कहती कि तुम सिर्फ BTR करो, मैम अपने स्केड्यूल जब देती है उसमें मैम खुद बोलती है कि इसमें तुम्हें BTR भी करना है, RR भी करना है, और टाइम बचे तो मेन नोट से भी कुछ टॉपिक्स देख लेना। तो वो तो खुद बोलती है कि सब कुछ करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ BTR की वीडियोस देख के यूं सोचते हैं कि अब तो मेरा हो जाना चाहिए, तो वो चीज नहीं होती। चीजें तुमको खुद के लिए इतना, मतलब चीजें एड अप करनी है उस BTR के अंदर ही, कि तुम परफेक्ट हो जाओ उस चीज में। क्वेश्चन अगर तुम्हें ना भी आता हो ना, तो मैम के टेस्ट एंड डिस्कशन, मैं सबको बोलूंगा कि मैम के टेस्ट एंड डिस्कशंस यू शुड डू, बिकॉज उसमें मैम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाती, उसमें मैम तरीका बताती है कि इसमें तुम अगर नहीं भी आता तो 2 ऑप्शंस को कैसे साइड कर सकते थे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें सब कुछ जानना जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कि तुम्हें वहां पे स्मार्टली बिहेव करना है। 2 ऑप्शंस, अगर 2 क्वेश्चन, मतलब 2 ऑप्शंस आप रूल आउट कर पा रहे हो, तो 2 ऑप्शन में से एक तो आप मतलब तुक्का भी मार सकते हो ना। मैम सीधा बोलती थी कि तुम 2 ऑप्शन पे आगे कभी कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। मैंने 198 अटेम्प्ट किए थे मेरे अभी जो नीट PG 2025 एग्जाम था, 198 मैंने अटेम्प्ट किए थे। सो उसमें थे 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो, मतलब मैं 2 ऑप्शंस पे आके अटक रहा था क्या करना चाहिए। तो जैसा मैम ने बोला था कि 2 ऑप्शंस पे आके छोड़ना नहीं है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही किया हूँ। तो टेस्ट एंड डिस्कशन मैम की साइकिल में, मेरे अकॉर्डिंग INI के बाद वाली जो मैम की साइकिल हो ना, उसमें ऐड हो जाना। तब तक ट्राई टू कंप्लीट योर फर्स्ट रीड बाय दैट टाइम, और अगर नहीं भी होती तब तक जितना सब्जेक्ट्स हुआ है उतना करके मैम की साइकिल में ऐड हो जाओ। इतना टाइम मिलेगा तुमको कि तुम मान लो 5-6 दिन मिले किसी सब्जेक्ट में, तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करके RR भी करना है। लाइक मैंने ENT और OPTHA का RR बाद में किया है, मतलब बीच में मैम के उसमें घुसा के किसी तरह से। तो इस तरह से करो। और तुमने एक और क्या क्वेश्चन पूछा था इसमें, PYQs का ना? हाँ, PYQ कैसे अप्रोच किया? लाइक PY मैंने कोई, लाइक आज मैंने RR से 2 वीडियोस देखी। नेक्स्ट डे मैं क्या करता था, जो 2 वीडियो देखी पहले उनको रिवाइज करता था। वो रिवाइज करने के बाद आई यूज्ड टू डू द PYQs। तो रिवाइज जो टॉपिक किए हैं वही टॉपिक को तुम अपने कस्टम मॉड्यूल में ऑप्शन आता है ना, PYQ उससे मत करो। PYQ का जो अलग से फोल्डर है वहां से मत करो, कस्टम मॉड्यूल्स के अंदर जाओ, ऐड द टैग ऑफ एम्स एंड नीट, और उसके अंदर से तुम क्वेश्चंस करो। टॉपिक चूज कर लो जो टॉपिक तुमने पढ़ा है सुबह, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आ जाएंगे। कम से कम वो टॉपिक के PYQs खत्म करो, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट टॉपिक्स जो आएंगे उसके करो। इस तरह से PYQ शुरू में करो। जब तुम मास्टर कर लो सारे सब्जेक्ट्स को, तो वो PYQ फोल्डर खोलो, उसके बाद तुम कर सकते हो। उसमें तो क्योंकि सारे टॉपिक्स होंगे ना, पूरा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होने तक रुकना पड़ता है, और फिर होने के बाद 2 ही दिन बचते हैं, तो उसमें सारे कवर नहीं होते। रुको मत, सब्जेक्ट होने तक मत रुको। अभी जो टॉपिक कर रहे हो, टॉपिक वाइज कस्टम मॉड्यूल के अंदर ही नीट और INI का टैग लगा के टॉपिक वाइज PYQs करो। अभी वो चीज बाद में करने के लिए, वो फोल्डर जो है वो बाद में करने के लिए। और सर आपने जो बोला था वो डेली कस्टम मॉड्यूल्स जो 50 क्वेश्चंस ऑल टैग्स, वो फर्स्ट रीड से करना चाहिए या बाद में? से करो, अभी मतलब कर नहीं पाओगे इतना, फिर चीजें रह जाएंगी। और फिर जनवरी फर्स्ट रीड तक, दिसंबर जनवरी आ गया तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चलेगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है। Okay, next. Yeah, next अबीबा। यस सर, जैसे सर क्वेश्चंस को जल्दी कैसे रिव्यू करना है कि टाइम कम ले इसमें, GT हो या कस्टम? Like when you are doing custom module or GT, whatever you are doing, if the paragraph is that much long, just see the important part in the first paragraph only. Like in Marrow, only the first paragraph is important. Other part is they jump to the previous year topic, not the question. They jump to the topic only. So उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन लाइक पूछा गया है, कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पूछा गया था कोई क्वेश्चन, और उसमें कुछ एक्टोपिक का वो पूछा है कि भाई क्या क्राइटेरिया रहेगा अनरप्चर्ड वाले में, तो सिर्फ उस क्राइटेरिया को रिवाइज करो और आगे बढ़ो। उस पूरे टॉपिक को पढ़ने गए तो फिर
कोई फायदा नहीं है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो मान लो उतना भी पढ़ लिया ना, अगली बार जब एक टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन आएगा तो और किसी चीज का आएगा, तो वो चीज अगले टाइम रिवाइज हो जाएगी। तो जो जितना इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ के नेक्स्ट पे चले जाओ, मतलब टाइम दे लो, 5 मिनट्स ऐसा या 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, ऐसे अपना टाइमर चलाओ, होते ही अगले पे चले जाओ। फोमो मत रखो कि नहीं हुआ वो सब। यस सर, एक और क्वेश्चन है। जैसे सर मैंने पिछले साल PYQs किया था लेकिन कस्टम मॉड्यूल नहीं किया था, तो सर इस साल मैं दोनों साथ साथ चलाऊं या फिर कस्टम मॉड्यूल पहले करना शुरू कर दूं? क्योंकि जैसे हम लोग GTs या फिर कोई भी टेस्ट देते हैं तो PYQ वाले क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन दूसरे जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहा है। और सर मैं वर्क कर रही हूँ तो सर मेरे पास टाइम भी कम है। हाँ, तो अभी PYQs अगर कर लिए तो बार बार करने का क्या कोई नीड नहीं है उसकी। दोबारा जब एग्जाम पास आए उससे 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले एक बार दोबारा कर लेना। अभी कस्टम मॉड्यूल्स करो डेली। सर अपने 5 सब्जेक्ट बताए थे, मेडिसिन, डर्मा, साइकी, एनेस्थेसिया और एक सर लास्ट वाला सर जो BTR से रेडियो तो मैम ने BTR में ही RR पढ़ा है, 6 घंटे का वीडियो है रेडियो। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट साची। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी जो मैम की ऑनगोइंग TND चल रही है INI के लिए, उसमें या फिर कोई भी मतलब नेक्स्ट भी अगर TND होती है तो जो चल रही है वो नेक्स्ट के साथ आप पिछले वाला जो हो गया है उसको रिवाइज कैसे करते थे? लाइक अगर मेरे पास 3 दिन है नेक्स्ट किसी भी टेस्ट के लिए एंड इंटीग्रेटेड को हुए ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए, तो अगर अभी मैं इंटीग्रेटेड लेके बैठूं रिवाइज करने तो वो नेक्स्ट वाला फिर वो रह जाएगा, या फिर मैं नेक्स्ट पढ़ूं तो फिर मैं उसको रिवाइज नहीं कर सकती। और अगर मैं पूरा रीड करने के बाद मतलब खत्म करने के बाद एंड में रिवाइज करने का सोचूं तो सर वो बिल्कुल नया हो जाएगा। मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ पहले, मतलब मैंने उसी चीज के लिए मैंने बोला है कि कस्टम मॉड्यूल्स करो डेली। उससे मतलब पीछे वाले टॉपिक्स बार बार जब आएंगे ना तो वो रिवाइज होते रहेंगे। मैंने यही तो बोला कि कस्टम मॉड्यूल करके जब रिव्यू कर रहे हो तो जो टॉपिक है उसको जाके अपने BTR से देखो ना खोल के, तो तुम्हारा वो खोल के क्या वो पेज पूरा एक बार रीड कर दो फटाफट 5 मिनट में, तो वो एक पेज रिवाइज हो गया। तो अगर बल्क में करने जाओगे तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट छूट जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो लाइक इंटीग्रेटेड यू आर डूइंग, सो जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है डेली रात को 1 घंटा दे दो पिछला। एक इंटीग्रेटेड तो इम्पोर्टेंट है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, भूल जाते हैं, तो डेली का रात को 1 घंटा देके जितना 2 पेज 1 पेज हो पाए रिवाइज कर लो। उस तरह से भी कर सकते हो। एंड सर जो कस्टम मॉड्यूल हम कर रहे हैं, सपोज अगर 50 क्वेश्चन में कर रहे हैं मिक्स बैग, तो उस पे सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हाउ टू एलिमिनेट दैट एंड हाउ टू कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? The questions that are corrected by 40 or 50% people that are important for you, you should also do that right next time. Because 40-50% से ज्यादा अगर कोई लोग उसको ठीक कर रहे हैं मतलब उनको आता है ना वो क्वेश्चन, तो तुम्हें भी आना चाहिए। 20-10-30% अगर है मतलब कि that is not so important. Just तुम्हें फील खुद से आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक लग रहा है कि पूछ सकते हैं। Like in this NEET they have not gone into the depth of the questions. They have just superficially उन्होंने क्वेश्चंस उठाए जो इम्पोर्टेंट डेली लाइफ में जो इंटर्नशिप में जो भी चीजें सीखते हो उन सब चीजों से ही इन्होंने कनेक्ट करके क्वेश्चंस बनाए थे। ज्यादा डीप में वो लोग नहीं गए थे। तो ज्यादा डीप वाले लाइक मैरो में बहुत कुछ दे देते हैं वो लोग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट उठा के दे देंगे जो तुमने देखा भी नहीं होगा कहीं। तो उन सब क्वेश्चंस को साइड बाय अपना मतलब जो 10-20-30% क्वेश्चन लोगों ने ठीक कर रखा है उसको तुम साइड कर सकते हो। वो देखने का ज्यादा नीड नहीं है, बस एक बार देखो, लिखने का उसको नीड नहीं है। डोंट यू नीड टू एड इट इनटू योर BTR। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा इस बार अटेम्प्ट दिया था तो मेरी 40,000 रैंक थी। इंटर्नशिप के बाद मुझे 5 मंथ्स मिले थे प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने RR किया था और उसके बाद मैंने मार्च-अप्रैल में BTR की सब्सक्रिप्शन ली थी। एक्सेप्ट सर्जरी, OBGY एंड कम्युनिटी मेडिसिन मैंने सारा BTR से किया था, बट और क्वेश्चंस भी मार्च-अप्रैल से ही स्टार्ट किए थे। GTs 1-2 दिए थे बस। और मुझे समझ में आ रहा है इस बार मैं क्या चेंज लाऊं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। अभी तुम BTR प्लान तो भी बचा हुआ होगा ना? जी BTR बचा है अभी। तो अभी अगर तुम नवंबर INI तक एक बार अपना RR पूरा रिवाइज कर लो। सर सारी सब्जेक्ट्स का RR? हाँ, जो तुमने पहले तुम बोल रहे हो ना तुमने किया है जी, RR पहले किया था फिर BTR किया था मार्च से। तो RR और जो BTR किया था उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो आज नवंबर INI तक। उसके बाद जो मैम जो साइकिल देंगी, जो भी स्केड्यूल देंगी उसके अकॉर्डिंग तुम अपना जो भी सब्जेक्ट लाइक मैम देंगी उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को पढ़ना और वो टेस्ट्स एंड डिस्कशंस तुम करना, वो काफी हेल्प करेगा। अगर ये तुमने 40,000 अभी लिए तो तुम काफी इंप्रूव कर जाओगे उससे। मतलब टेस्ट एंड डिस्कशन से तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका आएगा ना, तो दैट विल बी ओके सर।
सब PYQs वो कस्टम मॉड्यूल्स मैंने मुझे लगता है मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ था, बहुत सिली मिस्टेक्स की थी। 40 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बहुत लेट प्रैक्टिस किए थे। BTR के मैंने 3 to 4 रिविजन्स किए थे, बट क्वेश्चंस मैंने अप्रैल से स्टार्ट किए थे करना। हाँ, तो तुमने मतलब कर लिया, रैपिड रिवीजन एक बार हो चुका है, तो तुम अब डेली रिवाइज करो एंड 50 क्वेश्चंस डेली कस्टम मॉड्यूल करो, और PYQs अगर नहीं किए तो फिर PYQs भी करो फिर डेली। अगर कर लिए तो भी करने का नीड नहीं है, बाद में कर लेना आपको दोबारा से। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट शोएब सर, फाइनल रिवीजन के लिए हमें कंसाइज करना है तो कैसे करें सर? लाइक अनइम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्राइक ऑफ कर दे फ्रॉम द सेम नोट्स और अलग से नोट्स बनाए? नहीं, तुम मतलब अपना मेन सोर्स किसको लेके चल रहे हो फाइनल रिवीजन के लिए? BTR या RR सर? ना, एक तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, मतलब किस चीज में तुम ऐड करोगे सारी लास्ट के लिए। BTR ही होगा सर। तो BTR होगा तो एक चीज कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स में क्या किया था, रैपिड रिवीजन में मान लो कुछ चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑर्थो में लास्ट का पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया था उसमें अपने स्केच पेन से मैं मार्क कर लेता था कि ये टॉपिक मेरे को RR से एक बार देखना है। तो तुम वो चीज भी कर सकते हो, और जो चीजें तुम छोटी चीजें हैं, एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको तुम अपने BTR में ऐड करते जाओ। लाइक उपथा के अंदर मैंने रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी BTR में नहीं करवाया मैम ने, तो वो चीज मैं RR से अपना अलग से एक पेज चिपका के वो चीज मैंने उसमें लिख ली थी। तो कुछ तुम्हें खुद से पढ़ते ही फील आएगा। अभी तुम फर्स्ट रीड के बाद ऐड नहीं कर सकते हो, सेकंड रीड 2 बार जब तुम RR पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद BTR जब करते रहोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये चीज RR में इंपॉर्टेंट है और BTR में नहीं है, तो वो चीज तुम ऐड करो अपने BTR के अंदर। वो मतलब खुद से ही फील करके करोगे ना तो ज्यादा मतलब सही रहेगा। किसी की बताई हुई चीज है कि यही ऐड करना है, वो चीज सही नहीं है। तुम्हें जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए, तो वो चीजें तुम ऐड कर लो उसमें, क्योंकि लास्ट में आते आते तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, तुम RR खोलना चाहोगे तो भी नहीं खोल पाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। अंजलि। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मतलब INI मेरा टारगेट नहीं है, अगले साल का नीट है और साथ में मैं जॉब भी कर रही हूँ। मैंने सेरिबेलम के लाइव क्लासेस में एनरोल किया था, बट वो कंप्लीट हो नहीं पाते और बैकलॉग्स ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कुछ सब्जेक्ट्स का RR करती हूँ, तो फिर ना मिशन हो पा रहा है और ना RR हो पा रहा है, तो अब मैं कैसे प्रोसीड करूँ सर? मेरे अकॉर्डिंग तो टीचर्स के अकॉर्डिंग यू शुड प्रोसीड। जो टीचर तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टीचर से मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, वो टीचर का उससे करो। लाइक मैंने पैथो माइक्रो मैंने प्रीति मैम से किया था RR, और GRG सर से मैंने फार्मा किया था। तो तुम्हें देखना है कि अगर तुम्हें मिशन वाले सर का सही लग रहा है तो तुम उसका वो चीजें जो वीडियोस हो रही हैं वो चीज तो वो लोग उसमें अपलोड भी करते होंगे ना, तो तुम बाद में भी तो देख ही सकते हो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। फिर मैं उस दिन का लाइव क्लास देख रही हूँ तो वो पीछे का छूटता ही जा रहा है। कोई भी मतलब अभी तक 4-5 ही सब्जेक्ट हो पाए हैं अच्छे से। हाँ तो देखो, जॉब के साथ थोड़ा सा तो देखो होता है। तुम्हारा क्या मतलब गवर्नमेंट जॉब है या फिर मतलब गवर्नमेंट मतलब 6 आवर्स की ड्यूटी है सर, फिक्स, बट आना जाना पूरा मिला के। फिर तुमने मतलब ऐसे ज्वाइन किया हुआ लाइक बॉन्ड है? एमओ का है सर, बॉन्ड है सर, एमओ का पोस्ट है। अच्छा बॉन्ड है, तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा डेली का स्केड्यूल बनाओ। लाइक 6 आवर्स ड्यूटी है, तो उसके बाद तुम कम से कम दिन में 6-7 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम चलो। अगर लाइव नहीं हो पा रहा है तो इतने दिन तुमने बना लिए कि इतने दिन में मेरे को खत्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो। डेज के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बनाओ ना स्केड्यूल। नहीं कर पा रहे तो उसका फोमो लेने का जरूरत नहीं है कि नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। अपना खुद का बना लो स्केड्यूल, उसके अकॉर्डिंग चलो। लाइक 10 दिन दे दो, बहुत है 10 दिन। सर्जरी ऑफ गायनी ज्यादा दिन लगेगा, तो उनको तो टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। तो सब अभी RR करके साथ में PYQs करके मैंने BTR को सेकंड रिवीजन सेकंड लैब के लिए रखा हुआ है। हाँ BTR सेकंड में ही रखो, मतलब अभी टाइम भी नहीं मिलेगा ना। अभी BTR साथ के साथ करोगे तो फर्स्ट रीड होते ही जनवरी आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अभी पहले वो करो। BTR को सेकंड रखो खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। थैंक यू सर। ओमकार। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। एक्चुअली अभी मैंने फर्स्ट ईयर चालू किया है मेरा, मतलब मैं रोज से RR से कर रहा हूँ मैं भी।
तो मैं कंफ्यूज्ड था कि अभी मैं बीटीआर पैरेलल करूँ या मेरा फर्स्ट ईयर होने के बाद बीटीआर कर लूँ। कितना सब्जेक्ट्स हो गए अभी? अभी मतलब लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा किया था स्टडी इंटर्नशिप में, अराउंड 80,000 आया था मेरा रैंक। तो आरआर से मैंने लास्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है मैंने लास्ट ईयर। तो अभी मतलब फर्स्ट रीड चल रहा है ना, तो कितना सब्जेक्ट्स तुम्हारा हो गया कि हाँ ये सब्जेक्ट्स मेरे हो चुके हैं एक बार फर्स्ट रीड में? और 2-3 सब्जेक्ट्स हो गए मेरे। अच्छा, तो फिर अभी तो मेरे अकॉर्डिंग आरआर ही कंप्लीट करो, जो मैंने 5 सब्जेक्ट्स बोले उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कंप्लीट करो। और बीटीआर क्योंकि अभी ऐड करोगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मतलब दिसंबर जनवरी तक खिंच जाएगा, वो चीज सही नहीं रहेगी। तो अभी एक बार आरआर कर लो, तुम्हें फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी सेकंड रीड स्टार्ट होगी। नहीं तो तुम फर्स्ट रीड में ही रहोगे तो तुम्हें लगेगा दिसंबर आ गया, पेपर आने वाला है, वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट युग। हेलो सर, ड्यूरिंग योर इनिशियल जीटीज जब आप 90-100 करेक्ट क्वेश्चंस कर रहे थे तब आप कैसे रिव्यू करते थे जीटीज? जो रॉन्ग हुए उसको कैसे रिव्यू करते थे? और आपने आफ्टर योर फर्स्ट रीडिंग आपने अपने रिवीजन कैसे प्लान किए? जैसे मैं जीटीज का अगर मैं बात करूँ तो जीटीज में जो क्वेश्चन पहले तुम्हारे गलत हो रहे हैं ना उसको रिव्यू करना चाहिए। वो जल्दी मतलब अगर तुमने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, लाइक कुछ चीजें होती है शुरू में जीटी देते हैं, अभी जैसे जीटी दे रहे हैं और 5 सब्जेक्ट ही किए हैं, तो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं उनका तुम रिव्यू भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करता था कि जितने सब्जेक्ट्स किए हैं उन्हीं को रिव्यू कर लेता था पहले, फिर बाकी अगर मेरे को लगता था कि हाँ मैंने ये चीज मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ पहले जो मैंने अपने एमबीबीएस ईयर्स में पढ़ा है, तो उस चीज को मैं फर्स्ट पैराग्राफ उसका रीड करता था, उसके बाद मैं आगे चला जाता था। मैंने अलग से नोटबुक बनाने की भी कोशिश की थी जीटी रॉन्ग करके, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लूं, बट जितनी नोटबुक्स बनाओगे ना उतना ही वो नुकसान है, क्योंकि उसको कभी उठा नहीं पाओगे बाद में। तो मतलब ज्यादा नोटबुक्स मत बनाने पे जाओ, चीजों को एक ही जगह रखो। लाइक मैंने फिर बाद में क्या किया था, सारी चीजें बीटीआर के अंदर ही ऐड की थी। ओके, नेक्स्ट अनिल। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। 2 क्यूरियोसिटीज है सर। एक तो पहला सर मुझे बीटीआर बूट कैंप ज्वाइन करना है, तो मैंने एफएमजी टाइम में बीटीआर किया था, उससे रिजल्ट भी अच्छा आ गया था। पर सर अभी बीटीआर करता हूँ और आरआर पहले करता हूँ ना आरआर, तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आते हैं टॉपिक्स, स्ट्रक्चर हो जाता है। और सर एक मैंने कुछ सिस्टम के लिए फर्स्ट एड किया, तो फर्स्ट एड के साथ बीटीआर तो बहुत बेटर समझ में आता है। तो कैसे ज्यादा चीजें भी ज्यादा हो रही है, तो कैसे क्या करना चाहिए मतलब बूट कैंप ज्वाइन करने से पहले? बूट कैंप अभी आईएनआई के बाद वाला तुम ज्वाइन करने का सोच रहे हो? हाँ सर, नीट वाला। तब तक मेरे अकॉर्डिंग तुम बीटीआर ना करके आरआर कंप्लीट करो ना बूट कैंप तक, क्योंकि वहां पे बूट कैंप अगर ज्वाइन करोगे उसमें मैम डेली आके तुम्हें बीटीआर तो कराएंगे ही ना, तो तब हो जाएगा वो। तो और तब आरआर के लिए टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए आरआर अभी कर लो एक बार तब तक। और सर एक डेली का थोड़ा आप शेड्यूल स्ट्रेच बता दीजिए, मॉर्निंग से किस टाइम मतलब कैसे क्या करना चाहिए, आउट स्ट्रेच थोड़ा आपके आपका कैसा? तो अब तुम्हें देखना है ना कि तुम मतलब जल्दी उठने वाले हो या फिर लेट तक पढ़ने वाले। सर पोस्ट इंटरनेट तो पूरा दिन पढ़ाई के लिए रहता, तो आपका कैसा था? मैं जैसे डेली मैंने जैसे बोला, जैसे मैंने आज कोई वीडियो देखी, जैसे आरआर की मैंने आज 2-3 वीडियोस देखी, तो नेक्स्ट डे मैं सुबह उठते ही मेरा पहला काम होता था वो वीडियोस जो देखी है उनके नोट्स उठा के पहले मैं रिवाइज करता था बैठ के पूरा, तो उसी में ही मेरे 2-3 बज जाते थे दोपहर के। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे के लिए मैं वीडियोस देखना स्टार्ट करता था, 2-3 वीडियोस जितनी होती थी वो पूरी करता था। रात को फिर मैं क्वेश्चंस करता था, बस यही रहता था स्टार्टिंग में। फर्स्ट रीड में तो इतना ही रहता था, क्योंकि वीडियोस देख के तुम ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, वीडियो देखोगे रिवाइज करोगे आगे बढ़ोगे। तो फर्स्ट रीड से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि तुम फर्स्ट रीड कंप्लीट करोगे और जीटी में 100 क्रॉस कर लोगे। मतलब 100 तो कुछ लोग कर लेंगे, मैं तो ऐसा नहीं था, बट ये मत सोचना कि 150 तक पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट रीड में अगर कोई मेरे जैसा अगर है जिसने मतलब इंटर्नशिप में पूरा नहीं पढ़ाई, तो फर्स्ट रीड तुम्हें मतलब कि ज्यादातर चीजें तुम्हें याद नहीं रहेंगी। फर्स्ट रीड के बाद तुम्हें लगेगा कि मैंने क्यों ही पढ़ा, कुछ तो याद नहीं है मेरे को, बट तुम्हें बस चलते रहना है। अगर तुम ये सोच के अगर तुम पीछे मुड़ के पीछे की तरफ ही देखते रहेगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, दोबारा अगली रीड में पढ़ो। जब सेकंड रीड खत्म होगी तब तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसा मैंने बोला कस्टम मॉड्यूल करने से तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। मेरे को उसी से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि चीजें मतलब बार बार तुम्हारे सामने आएंगी ना तो वो ज्यादा याद रहेंगी। एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से याद नहीं रहने वाली चीजें। लाभी मेरे से एग्जाम में कितना 1 महीना हुआ है, रिजल्ट को 1-1.5 महीना हुआ है,
तो आधी चीजें उड़ चुकी है। तो मेन जो इसमें जो कंपटीशन में गेम है वो रिवीजन का ही है। तो ये मत सोचो कि तुम्हें परफेक्ट होना है किसी सब्जेक्ट में, ये सब चीज तुम आगे पीजी लेके भी कर लोगे। जो तुम्हें लेना है उसमें परफेक्ट होना ना। अगर तुम्हारा इतना मन है 19 के 19 सब्जेक्ट्स में तुम्हें परफेक्ट होना है तो 3 साल है पीजी के, उसमें परफेक्ट हो जाना। अभी कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही लेके चलो, मतलब ज्यादा परफेक्शन पे मत जाओ। कंपटीशन को स्मार्टली कैसे डील करना है वो देखो। क्वेश्चंस तुम्हें जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन जो टॉपिक है तुम्हें पूरी तरह से आना चाहिए। ऑप्शन देख के तुम्हें याद आ रहा है तो तुम मतलब कंपटीशन के लायक हो। वाइवा नहीं ले रहा कोई उधर। मेरे को ऐसा ही था कि कोई टॉपिक अगर कोई पूछे तो मेरे को याद नहीं है, ऑप्शन बताओ 4। मीम भी बना है इसके ऊपर कि कंपटीशन वाले हैं, तो मीम यही तो था कि ऑप्शन दो मेरे को तब बताऊंगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन दे के बताऊंगा तो आगे जाके सीख जाऊंगा मैं, जो भी मतलब मेरे को अगर परफेक्ट किसी चीज में होना है तो। अंशराज भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। ये मैं 7 to 8 प्रिपरेशन, ये मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसमें मेरी 20 करंट 25 नीट पीजी में 20,000 29,000 29,000। और मैंने भैया क्या किया 7 to 8 मंथ मेरे पास प्रिपरेशन में थे, तो मैंने क्या किया था कि मतलब 19 के 19 सब्जेक्ट के सोर्स डिसाइड कर लिए थे और फिर उस सोर्स के मेन नोट्स और रैपिड रिवीजन दोनों साथ में ही ऑर्डर किए थे 19 के 19 सब्जेक्ट के। तो मैंने एक बार वीडियोस देखता था, फिर उसके मेन नोट्स देखता था और उसी टॉपिक के उसी दिन साथ में रैपिड नोट्स भी देखता था और उसमें काफी चीजें ऐड करता हुआ चलता था। मतलब आरआर में रैपिड वाले में ऐड करते हुए चलते थे। हाँ, रैपिड रिवीजन में ऐड करता जाता। तो आज मेरे पास मेरे अपने मेन नोट्स भी रेडी है और अपने रैपिड रिवीजन नोट्स भी रेडी है। और मेरे रिवीजन्स में मैंने इतना कुछ ऐड कर दिया, मैंने पीवाईक्यूज ऐड कर दिया या इतना कुछ ऐड कर दिया कि मतलब और मेरे को लगता नहीं कि और ऐड करने की जरूरत है। तो मैं उसी से मतलब चल रहा हूँ और जीटीज बीटीज भी दे रहा हूँ, तो 130 to 140 के आसपास मेरे करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन तो जब मतलब हाँ बोलो, जब मैं ये ग्रुप वगैरह देखता हूँ या सब में, तो मतलब हर जगह देखता हूँ बीटीआर, तो उसको देख के मेरे को फोमो क्रिएट हो रहा है कि मतलब मैं बीटीआर करूँ या न करूँ। अगर नहीं किया तो मैं मतलब मेरी रैंक है वो मतलब पीछे तो नहीं जाएगी या क्या, मतलब उसके बारे में पूछ रहा है। इसकी मैं एक मतलब स्टोरी बताता हूँ मेरे दोस्त की। मतलब किसी को मैं बीटीआर का ये नहीं कह रहा कि बीटीआर तुम करो, बट अल्टीमेटली एक स्टोरी है कि उसने ऐसा ही था। वो उसको मैं बोलता था भाई बीटीआर एक बार तू करके तो देख, तेरे को काफी चीजें समझ आएंगी। तो उसकी जब मेरी 1,16,000 आई थी, उसकी अराउंड 85,000 आई थी और वो मतलब मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मैं उसको बोलता था भाई तू करके देख, तू बहुत परफेक्शन पे चला जाएगा। उसने मतलब क्या किया, पहले कुछ सब्जेक्ट्स के मेन नोट्स किए पर वो नहीं कर पा रहा था, तो वो रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हो गया। फिर रैपिड रिवीजन करते करते आखिरी में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया कि इतना रिवाइज कैसे करूं। तो अभी मतलब उसका रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तो अब वो INI के लिए बीटीआर से कर रहा है। तो अब वो मेरे को बोलता है कि भाई तू बोलता तो सही था कि बीटीआर एक बार कर लेना चाहिए। मतलब उस बीटीआर में तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें चीजें समझ आएंगी कि कितनी इजीली तुम्हें याद हो जाएंगी कुछ चीजें जो तुम रैपिड रिवीजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ना, कुछ टॉपिक्स वो बहुत इजीली तुम्हें याद हो जाएंगे। तो अगर फ्री वीडियोस कहीं से मिल रही है तो उससे एक बार कुछ टॉपिक्स का देख के देखो, तुम्हें अगर फील हो कि हाँ करना चाहिए तो करो। अदरवाइज आरआर से तुम मतलब तुमने जो बनाया हुआ है अपना, उसको बार बार रिवाइज करो, उससे भी तुम परफेक्शन पे आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं आ सकते हो, परफेक्शन उसमें भी आ जाएगा। हर कोई बीटीआर है भाई, मैरो के जो टॉपर है वो बीटीआर थोड़ी करते हैं, वो हम जैसों के लिए होता है जो ज्यादा पढ़े नहीं होते इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं आजकल। कोई मेरो टॉपर ऊपर से मतलब नहीं, सब कर रहे हैं सारे ही कर रहे हैं। मुझे पूछना था कि जैसे मैं INI नवंबर टारगेट कर रही हूँ, तो आई एम डूइंग बीटीआर और उसके साथ मैम का TND शेड्यूल एज इट इज फॉलो कर रही हूँ मैं। कुछ थोड़ा बहुत बैकलॉग रहता है बट मैं ट्राई करती हूँ, जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट्स चल रहे हैं अभी तो वो कवर हो जाए। बट मेरा क्वेरी ये है कि सब बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स जो है वो INI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं उसका सिर्फ बीटीआर नहीं करके जो मेरे मेन नोट्स हैं जो कि डैम्स के हैं तो उसको भी करूँ? अच्छा, डैम्स के नोट्स है तो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। डैम्स में तो ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, मैरो में तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा करा देते हैं। नहीं मतलब मेरा डैम्स ही है जो कि मेन सोर्स इज डैम्स और बीटीआर है। हाँ, तो डैम्स के नोट्स तुम जैसे इसके लिए कर सकते हो, लाइक पैथो के लिए कर सकते हो, जनरल पैथ के लिए। सिस्टेमिक पैथ मेरे अकॉर्डिंग नीड नहीं है उतना, मतलब इंटीग्रेटेड किया है तो तुम्हें फील होगा कि हाँ चीजें इंटीग्रेट। हाँ
जनरल पैथ थोड़ा बहुत जो चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा लगे वही पढ़ना है। जो टॉपिक तुम्हारे बीटीआर में है वो टॉपिक दोबारा पढ़ने का मतलब नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीजें लगे वो तुम करो। फार्मा लाइक मैंने जीआरजी सर से के नोट से की थी आरआर से, तो मतलब आरआर से फार्मा भी कर लेनी चाहिए। और पैथो में जनरल पैथ, और माइक्रो में बीटीआर में मेरे को जो लगता था पैरासाइटो थोड़ा सा मतलब मैम तो ज्यादा ही कंसाइज कर दिया है, तो वो थोड़ा पढ़ता था रैपिड रिवीजन से प्रीति मैम का। तो कुछ टॉपिक वाइज देखो, मतलब फुल करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज जाओ। लाइक पीवाईक्यूज में जो टॉपिक ज्यादा पूछे हैं उन टॉपिक्स को एक बार आरआर मतलब इससे डैम्स वाले नोट से अपना जरूर देख लेना। तो टाइम है तो पूरा अपना रिवाइज कर सकते हो। पैथो तुम्हें हमेशा आई9 में पैथो बहुत पूछते हैं, माइक्रो भी बहुत पूछते हैं, और इसमें पीसीओ भी पूछते हैं। एनएट का ऐसा है, एनएट सबका ही वीक होता है। मेरा पर्सनली मतलब मैं एनएट पढ़ रही हूँ, मुझे 2 दिन से हो नहीं रही, बट मैं कैसे भी करके उसको कर रही हूँ। बीटीआर में इतना डेप्थ में दिया है, मुझे लग रहा है मैं मेन नोट्स उठाऊं कि नहीं उसके अभी। हाँ, एनएट में मैम ने मतलब काफी कराया, फिर भी एनएट तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत सबसे वास्ट सब्जेक्ट, लोगों को मेडिसिन लगता होगा पर एनएट भी बहुत वो ये कंफ्यूजन है कि ये बीटीआर ही खत्म नहीं हो पा रही है ये सब सब्जेक्ट्स की, जैसे एनएट हो गया, बायोकेम हो गया, तो फिर इसके मैं मेन नोट्स भी उठाऊं या नहीं उठाऊं? मेन नोट का नीड नहीं है, बायोकेम मैम ने काफी अच्छा कराया। मेन नोट से बस उसमें थोड़ी चीजें हैं जो मैम शायद टेस्ट में अभी दे भी रही होंगी, लाइक स्फिंगोलिपिड्स और ये सब जो टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन वाले जो टॉपिक्स हैं, वो थोड़ा सा जनरल वाला जो लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स हो गया, ये चीजें मैं थोड़ी सी बीटीआर में नहीं है, तो अगर मैम टेस्ट में ना दे तो वो देख लेना एक बार, मतलब उससे आरआर से। और मैंने कुछ सब्जेक्ट बीटीआर में पहले नहीं किए थे, जो जैसे कि पीएसएम, एनेस्थीसिया, ऑफ्थेल्म, गायनी, ये सब मेरा मेन सोर्स वाज डैम्स ओनली। तो मैं अब वो बीटीआर कर रही हूँ, तो करना चाहिए या फिर जो किया है? अगर बीटीआर यूजफुल लग रहा है तो करो। वीडियो देख के तो लग रहा है कि नहीं मैं तो नहीं यूजफुल, तो मतलब छोड़ भी सकते हो। पीएसएम में यूं है कि जो पीएसएम में आखिरी के मतलब एक तो मैम ने एपिडेम बहुत बढ़िया कराया, एपिडेम और बायोस्टैट वाला पार्ट मतलब बीटीआर से कर सकते हो, मतलब मैंने सिर्फ उसी से किया था। और बायोस्टैट ज्यादा आता है आई9 में, मतलब नीट में तो आता नहीं होता, तो आई9 में ज्यादा आएगा, तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लेना पीएसएम में। और क्या बोला, एनेस्थीसिया? हाँ, एनेस्थीसिया, ऑब्स गायनी और ऑफ्थेल्म। एनेस्थीसिया कर सकते हो, बीटीआर में 1.5 घंटे की वीडियो है। एनेस्थीसिया मतलब ये सब नहीं किए थे, तो जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं वो तो मैं कर रही हूँ, जैसे ऑर्थो भी नहीं किया था, तो वो भी मैंने बीटीआर कर लिया है अभी। तो मेरा डाउट है कि करके कैसा लगा, सारी चीजें ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ऐसा लगा था कि फैला हुआ था सच में। इवन डैम्स डीवीटी भी किया हुआ है, बट वो बेसिकली इमेज बेस्ड ही है पूरा डैम्स डीवीटी जो है। तो मैम का वाज लाइक कि ठीक है, थ्योरी अगर तुम मेन नोट से अभी नहीं भी करोगे तो इट्स मोर देन एनफ। कुछ सब्जेक्ट तो काफी अच्छे, बायोकेम काफी अच्छा है मैम का। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स बीटीआर से कर लेने चाहिए पूरे, आईएनआई के लिए तो मेरे एक बार टाइम है तो कर लो। ओप्स का ही नहीं, फिर भी मतलब मैंने क्या किया था, रैपिड रिवीजन मैरो का कर रहा था मैं ओप्स के लिए, तो मैंने आखिरी में क्या किया था, मैंने छोटी कॉपी करके एक नोटबुक सी बनाई थी, उसमें मैंने वो सब टॉपिक्स ऐड कर लिए थे जो मतलब बीटीआर में नहीं थे, तो मैं फिर उसको पढ़ लेता था। मतलब बार बार आरआर पढ़ना मेरे को मतलब सर दर्द लगता था। पर मेरे पास तो दीप्ति मैम के नोट्स है, तो दे आर मोर देन डूएबल, तो मैंने फिर बीटीआर किया है। दीप्ति मैम जो क्वेश्चंस देती हैं वो मतलब ग्रुप उनका ज्वाइन कर लेना। हाँ वो आई एम वेरी मच रेकमेंड। मैं डेली रात को करके सोता था ओप्स गाइनी के। अभी भी मैम 5 क्वेश्चन करा रही है रोज वहां पे। हां वो हेल्पफुल है, टॉपिक वाइज करा रही है अभी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। हां जी, एनीवन एल्स एनी क्वेश्चन? फिर those who are asking about anatomy na, this guy is very famous in India for anatomy lectures. Really? मेरा चैनल है Essentials of Medical Science. I'm sharing the YouTube. Just see the channel. Just see the channel. Guys, मतलब मैं खुद के नोट्स पढ़ता था नेट के लिए। see 523k सब्सक्राइबर्स। ओह नाइस। हाँ जी, को बोलेंगे भाई कि थोड़ा यहाँ पे हमारे भी कुछ क्लासेस लो। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, जिसको लग रहा होगा कि टाइम नहीं है हमारे पास, अभी टाइम नहीं है, मैंने मतलब कि अपना ऐप लॉन्च किया था, एनाटॉमी कोर्स में लॉन्च किया था, तो नवंबर से लेके लाइक मार्च तक मैंने डेली रात को वीडियो शूट किए। 2 वीडियोस में डेली रात को शूट करता था 9 से 12, मतलब वो टाइम मैंने वीडियोस को दे रखा था, तो उसके अलावा भी मैंने टाइम निकाला, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। लो, मेरे पास एक और क्वेरी पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बोलो। कुछ दिन ऐसे होते होंगे जहाँ पढ़ने का मन नहीं करता है, आप उस दिन भी पढ़ते थे? मतलब
लाइक मैं जब तक घर पे था ना, तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि अप्रैल के लाइक मैं 28 अप्रैल को मैं विद्या जीवन चला गया था ग्रेटर नोएडा में जो है। तो उससे पहले क्या हो रहा था, लास्ट के मतलब वहां जाने से 10-15 दिन पहले तक मेरे को ऐसा हो रहा था कि मुझे पता है मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, बट फिर भी मैं आराम से मतलब आलस में पढ़ा रहता था, तो मन ही नहीं करता था करने का। ऐसा लगता था कि क्या करूं, नहीं हो रहा, बैठता था तो भी याद नहीं हो रहा, नींद आती थी। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं वहां चला जाऊं। तो ऐसा टाइम आएगा बीच में कि मतलब मन नहीं करेगा, उस दिन क्या है थोड़ा हाफ डे अपना ऑफ ले लो, तो क्या है चिल करो थोड़ा सा। तो लेकिन रोज पढ़ साथ निकल जाता था रात को कहीं, मतलब बीच में कभी 15-20 दिन में कभी। ठीक है, तो अपना पार्टी वगैरह जो भी है वो करो, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, अभी तो एग्जाम में टाइम है। ट्रू। ओके, विल टेक लास्ट क्वेश्चन इफ एनीवन। यहाँ भी लोगों के फैन तो मिले गए मोहित। Someone commented, he studied from your channel, sir, in your first prof, in our first prof. Thank you. मैं तो अब खोलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं 2 दिन से एनाटॉमी में लगी हूँ। जो टॉपिक समझना है देख लेना। या अंजलि, एक बार आप मतलब हर एक सब्जेक्ट का बेस्ट रिसोर्स बता सकते हैं, लाइक कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन से प्लेटफॉर्म से आपके हिसाब से? देखो एनएट में जो है अश्विनी सर की जो वीडियोस हैं आरआर की, मतलब उन्होंने काफी कम पढ़ा है बट जो इम्पोर्टेंट चीजें उन्होंने कवर की है। तो एनाटॉमी अश्विनी सर से कर सकते हो। उसके अलावा फिजियोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैंने तो मैरो का ही आरआर से ही किया था। ओनली जनरल फिजियो मैंने की थी आरआर से, बाकी मैंने सिर्फ बीटीआर से ही किया है। मतलब फिजियो में भी वो भी मैंने डायरेक्ट नोट्स पढ़े हैं फिजियो के। मतलब जरूरी नहीं हर सब्जेक्ट में तुम्हें वीडियोस देखना पड़े, कुछ सब्जेक्ट्स तुम डायरेक्टली नोट्स पढ़ोगे, समझ आ रहा है तो सिर्फ नोट्स पे रहो, वीडियोस देख के कोई फायदा भी नहीं है। मतलब कुछ चीजों में टीचर क्या कर रहा है, भाई लिखा हुआ ही तो बोल रहा है ना। तो कुछ सब्जेक्ट्स तो तुम्हें अपने लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है तो उसके डायरेक्टली तुम नोट्स पढ़ो। उसके अलावा बायोकेम में मेरे अकॉर्डिंग बीटीआर मतलब एनफ है। बीटीआर करके पहले बीटीआर करो बायोकेम के लिए, उसके बाद आरआर खोलो और देखो कि क्या क्या चीजें बीटीआर में नहीं थी, वो चीजें उससे अपना मतलब मार्क कर लो या ऐड कर लो, जैसे भी सही लगे। बायोकेम के लिए भी मैंने मैरो से ही किया था, मैरो आरआर से, बट वीडियोस में उतना कुछ समझ नहीं आने वाला आरआर से भी, मतलब खुद से ही तुम्हें करना पड़ेगा, बीटीआर से ही समझ आएंगी चीजें। और पैथोलॉजी मैंने प्रीति मैम से की, माइक्रो प्रीति मैम से की। उसके अलावा जीआरजी सर से फार्मा मैंने की, और ओप्था ईएनटी मैरो से किया आरआर से। और पीएसएम भी मैरो के नोट्स पढ़े मैंने डायरेक्टली। पीएसएम में भी मैंने वीडियो नहीं देखी क्योंकि मोहित सर की मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि वीडियोस में वो मतलब ज्यादा समझ तो नहीं आता था, तो मैं डायरेक्ट नोट्स ही पढ़ लेता था उसके। तो नोट्स से भी आ जाएगा, पीएसएम डायरेक्टली नोट्स पढ़ सकते हो। और क्योंकि उसमें मक्खी मच्छरी तो है, उसके बारे में लिखा हुआ है तो खुद ही पढ़ लो। उसके अलावा पीएसएम हो गया, एफएसएम भी डायरेक्टली नोट्स पढ़ो। एफएसएम में मैंने क्या किया था, शुरू के 3-4 चीजें ही मैंने टॉपिक्स ही मैंने आरआर से पढ़े थे। टॉक्सिकोलॉजी मैंने डायरेक्ट बीटीआर से किया था। फिर तो कुछ चीजें हैं जो तुम स्किप करके देख सकते हो, डायरेक्ट बीटीआर करके देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ सही है तो तुम चीजें स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ नोट्स भी पढ़ सकते हो, तो वो चीज कर लेना। उसके अलावा फाइनल ईयर में सर्जरी मैंने मैरो के नोट से किया, ओबीजीवाई मैरो से किया, पीडियाट्रिक्स भी मैरो से किया। मतलब फाइनल ईयर मोस्टली मैरो से किया। जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैंने बताए और मेडिसिन जो मैंने बताया वो मैंने डायरेक्टली बीटीआर से किया। तो मतलब 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने इधर उधर से किए, बाकी तो मैरो के आरआर से ही देखा था। तो अगर तुमने कुछ फॉलो किया है अभी तक शुरू से अब तक, लाइक प्रेप से अगर कोई कर रहा है शुरू से, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से कोई प्रेप देख रहा है, तो वो अपने प्रेप का आरआर देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मैरो पे शिफ्ट करना है, बट मैं यही कहूंगा कि बीटीआर को अपने उसमें ऐड करो, और लास्ट में बीटीआर के टेस्ट एंड डिस्कशंस को जरूर थोड़ा सा ऐड करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ आएगी, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, स्मार्टली कैसे मतलब क्वेश्चंस को देखना है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से मतलब सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस, थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा। Okay, sir. Thank you. Okay, so I think we have covered everything. All the questions काफी लंबा भी चला गया। नॉर्मली जल्दी खत्म करना पड़ता है, तो दोस्त अगर आए सेशन में तो हम कितना भी टाइम रख सकते हैं। So there is no issue and we will invite Mohit soon after also. अगर किसी को नहीं पता हो तो दीपक सर और मैं अभी मुंबई से ही आए थे, 3 दिन पहले ही हम लोग मुंबई में गए इवेंट में। पता है मैं कौन हूँ। हाँ जी, और लास्ट ईयर हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, उससे पहले तो मैं भी जानता था मोहित को। हम 2 साल आ रहे हैं और रूममेट्स हैं वहाँ पे। हाँ जी, और आई थिंक ही डन अ ग्रेट जॉब इन द एनाटॉमी सेक्शन इन यूट्यूब आल्सो। मतलब वहाँ पे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आके बोल रहे थे ना भाई मोहित को
Sir, we have studied anatomy from you in first year itself. So bro, do something for NEET PG also यार, थोड़ा anatomy को easy बनाओ, थोड़ा कुछ एक short course launch करो. लेता हूँ टिप्स लेता हूँ. NEET PG के लिए एक short course launch करो. It will be great. And thank you so much Mohit for joining, and thank you so much for this time, and I'm very happy to host you today. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. Bye. Take care. Bye. Thank you भैया. Thank you, sir.